नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं ओवर द रोल ऑफ मीडिया इन रिपोर्टिंग द हाथरस इंसिडेंट। जी हाँ, मैं सिर्फ बात करने वाली हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करी गई है। एंड द पब्लिक प्लेटफॉर्म शेयर्ड इज जी न्यूज प्लेटफॉर्म एंड डीएनए प्लेटफॉर्म। यहां पर इन्होंने कहा है कि द उत्तर प्रदेश पुलिस हैज रजिस्टर्ड सेवरल FIRs in the case, citing a deep conspiracy to trigger caste-based violence in the state. The FIR also names a certain section of media and an unknown leader for spreading rumors on social media along with some politicians for luring the family to give 50 lakhs. 50 lakhs देने की बात तो हमने रिपब्लिक न्यूज चैनल के ऑडियो में सुनी थी, जहां पर कोई बंदा फैमिली के इंसान को कह रहा था, फैमिली के सदस्य को कह रहा था कि आपको 50 लाख मिलेंगे इफ यू से दिस व्हेन प्रियंका वाड्रा कम्स एंड विजिट्स यू। अब उसी के आधार पर एक FIR दर्ज करी गई है अगेंस्ट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया एंड एन अननोन लीडर जो ये साजिश रच रहा था, बिकॉज द साजिश वाज टू क्रिएट a communal violence on the base of casteism in Uttar Pradesh. अब according to the FIR, some section of people in media are talking about rape. मगर रेप अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है एज पर द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड द मेडिकल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रेकमेंडेड अ CBI इंक्वायरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने आप एक CBI इंक्वायरी की मांग रखी है, मगर जो विक्टिम की फैमिली है वो सरप्राइजिंगली ये नहीं चाहती। ये इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर शेयर है, दैट इज जी न्यूज एंड डीएनए। अब वो कह रहे हैं कि अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मीडिया इस इंसिडेंट को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। There was an old acquaintance between the victim, that is Manisha Valmiki, if that is her real name, and the main accused Sandeep Singh, जिसका नाम उस वीडियो में भी दिया जाता है, जो वीडियो को मैंने शेयर किया है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर the victim is talking from her own mouth, her tongue is not cut, जैसे फैलाया गया था by Indian media at the start of the incident of reporting, at the start of reporting this incident. अब वो कह रहे हैं that because there was an old acquaintance between the victim and the main accused, that is Sandeep Singh, there was a conversation between them, and ये call data records से prove कर दिया गया है, because there are call data records comprising of approximately 5 hours from October 2019 to March 2020. But the victim's elder brother flatly refused to have ever talked to the key accused. ठीक है, क्वेश्चन अराइजेस, अगर ब्रदर ने बात नहीं करी तो किसने मेन अक्यूज्ड के साथ बात करी है? क्योंकि मेन अक्यूज्ड इज संदीप सिंह, विक्टिम इज मनीषा। सम Bulgari village residents hinted towards a possible love affair between the accused and the victim. The family members of the accused, that is Sandeep Singh, have denied the alleged gang rape of the victim. Accused Ramu is said to be working at a dairy plant. The owner of the dairy plant testified this fact before camera, saying that Ramu was here from 8 AM to 12 AM. From the statements of the village and the documents we showed you, some questions arise. ये उन्होंने questions रखे हैं. Why did the family not say about the rape on September 14th, जब ये incident हुआ? Why did the remaining 3 accused not be named on the first day? Why did the family mention gang rape after 8 days? Why was the talk of cutting the victim's tongue spread while she is seen talking in the video? Why did the family not agree with the CBI investigation and the narco test? अब सच क्या है ये तो हमें समय बताएगा, मगर हाथरस पुलिस को भी एज अ थर्ड पार्टी अक्यूज्ड माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने केस को सप्रेस करने के लिए विक्टिम की बॉडी को रात के अंधेरे में क्रिमेट किया विदाउट सीकिंग द फैमिलीज परमिशन। तो वो जो रात के अंधेरे में क्रिमेशन हुई वो एक्चुअली विक्टिम की बॉडी की हुई, जो गलत था, विच वॉज डन बाय हाथरस पुलिस। They further committed mistakes by preventing media and leaders from meeting the victim's family. So Hathras police is also questionable here, and the victim's family was not even allowed to leave their house. The big question still looms large if the victim was raped. क्या victim के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो समय बताएगा, क्योंकि the forensic report of the Medical College of Aligarh Muslim University and the Safdarganj Hospital in Delhi have proved that no rape has happened, only that the victim was assaulted. तो अब सच क्या है ये तो हमें समय बताएगा, मगर दिस इज द ट्रुथ ऑफ द हाथरस इंसिडेंट, और ये ट्रुथ को
सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया ने तोड़ दिया, मरोड़ दिया और इसे एक गैंग रेप की स्टोरी बनाकर, जातिवाद की स्टोरी बनाकर दिल्ली के अंदर कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने का प्रयास किया, जो कम्युनल वायलेंस वो यूपी के अंदर भी चाहते थे, बिकॉज दैट सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया अंडर द गवर्नेंस ऑफ एन अननोन लीडर वांटेड टू क्रिएट वायलेंस इन यूपी बिकॉज यूपी इज अंडर बीजेपी सरकार. तो ये है सच ऑफ द हाथरस इंसिडेंट. इट इज अप टू यू नाउ टू बिलीव whom you want to believe, बट मैं कोशिश करूंगी कि सच आप लोगों के सामने जरूर रखूं. नमस्ते, जय हिंद.